So when we want to write algorithms, we write algorithms as structured English, as simple as possible. And we can create flowcharts, and we'll be writing pseudo code. So this is simple English instructions, set of instructions. It has some kind of symbols explaining us the flow of instructions, and it is little more. It is also in our own language, English, but little closer to the code, program code, but not specifically in a programming language syntax. And I explained the syntax in one of the lessons that you can view over in the previous lessons में मैंने दिया था. आप गूगल पे उसे क्लासरूम पे देख सकते हैं, वो lessons भी देखें. चलिए, then now from today we will be looking little more कि किस तरह से हमने चीज़ें करनी है. Now ये Visual Studio Start हो गया, जो मैंने इंस्टॉल किया था इस तरह से, इसकी इंस्टॉलेशन लगाई हुई थी यहाँ पर. ये इंस्टॉल हुआ है, तो मैंने वैसे इसे मॉडिफाई करने के लिए कहा था. हाँ ठीक है, तो ये मॉडिफाई हुआ है. और आपने ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपने ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना. और ये जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे वर्ड इंस्टॉल आ रहा होगा. जैसे यहाँ पे इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, आप इसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी. मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ इसको राइट साइड पे इस बटन को क्लोज कर दूंगा ताकि इंस्टॉलेशन मॉडिफाई ना हो. तो बस आपने देख लेंगे, आपने .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट को क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है. मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, तो ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ. और आपने जब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यू विल क्लिक द फाइल बटन एंड देन यू विल क्लिक न्यू प्रोजेक्ट, और आपके पास ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा. ये आपने सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है. हमने कंसोल जो एप्लीकेशन होती है वो डेवलप करनी होती है. तो आप चाहे नेक्स्ट कह दें, या आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दें, डबल क्लिक. ये आप डबल क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा. गिव अ प्रॉपर नेम टू एन एप्लीकेशन so that you could find out कहाँ पे सेव हो रहा है. So I say here my first program, and you can see where it is. It will be saved. The location is this. In the my laptop there is a folder of source, and in that source there is a folder of repos. वहाँ पे ये इसका फोल्डर बन जाएगा. देन आई से क्रिएट. यहाँ से मैं इसे क्रिएट का बटन प्रेस करूँगा, ये तो एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. और फिर वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ने काम करना. सो दिस इज द एरिया of the program code where we'll be writing code. Those who are who have installed Windows Visual Studio 2017, they will not see this. I'm deleting this part, so they will not be looking these instructions. They will be viewing only this much as their program code. So it doesn't matter ये imports अगर हम import systems अगर यहाँ पे हम रहने भी दें, even then there is no problem.
Okay, now let's start a bit more about programming. The first thing that we must understand um, that there are some mathematical operators. I also have discussed this in one of the previous classes, mathematical operators. Whenever we write an instruction, that instruction will have either combinations of mathematical operators of and logical operators, and some commands that programming languages provide us in their syntax. So हम यहाँ पर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन के लिए हम ये यूज़ करेंगे एंड there is a there are two operators which are very important for us, mod and div. Now let me write it. These are my these are pseudocode operators. Pseudocode operators का मतलब क्या है कि जब मैं pseudocode लिखूंगा तो तब ये operators यूज करूंगा और आप याद रखें कि we are learning paper 2. We are discussing paper 2. I'll be teaching you paper 2. So paper 2 में we will not be writing any programming language syntax. We'll be writing all pseudocode. तो वो pseudocode की गाइड भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सूडो कोड एग्जैक्टली कैम्ब्रिज वालों ने या एग्जामिनर ने किस तरह से हमें लिखने के लिए कहा हुआ है, क्या किस तरह से नजर आएगा। वेल मैं भी गाइड करूंगा आपको। एंड देयर आर सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। The logical operators are not, and, or, and very rarely will be looking XOR. These are gates, and some of you might studied it in physics. तो इस तरह के हम कुछ गेट्स यूज करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स में, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स यानी कि हमारे प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस। तो जो जितनी भी प्रोग्रामिंग कोड होगा उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, हर इंस्ट्रक्शंस में या तो इस तरह के ऑपरेटर्स यूज हो रहे होंगे या ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स ये यूज हो रहे होंगे और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे। इनको यूज करते हुए हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस बनानी होंगी यूजिंग सेट ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो क्या होंगी वो भी अभी आगे आती जाएंगी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होगा कि हम दो टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं इक्वल्स टू साइन से। नॉट इक्वल्स टू के लिए हम ये यूज कर लेते हैं greater than and less than sign. You know this is the less than sign and this is greater than sign. And then we have greater than sign, we have a less than sign, greater than equals to comparison ऐसे होगा, less than equals to comparison ऐसे होगा। So equals to, not equals to, greater than, less than, greater than equals to, and less than equals to. These are comparison operators that we'll be using to write instructions, and these comparison operators help us in make some decisions in our programming language. ये भी आगे आएंगे, इनको भी हम देखेंगे क्या होता है। And the next thing is that we understand variables. से पहले कि हम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी एक कोड को लिख के हमें पता होना चाहिए व्हाट आर वेरिएबल्स. Whenever we are writing a program, in that program we need to store data. We need to store data. That data could be a constant value, maybe which is not changing over the period of time. That may be to be inserted by the end user, the one who is going to use this program, जिसके लिए हम program बना रहे हैं. Maybe the value that we want to store is the result of some kind of calculation, result of a calculation. And third is the programmer wants some value, some variable, some value to be inducted with actually at the time of coding. So programmer has to store some data initially, which might change during execution of program. So it is different from constant value. Now, what are variables? As I mentioned, that we need to store data. So in these variables, because we need to store data, we need to create variables. Variables means a storage area or memory to store data of a program. And ऊपर मैंने बता दिया कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो फिर हम क्या बनाएंगे वो बताता हूँ. ये कोई डेटा हो सकता है जो यूजर इंसर्ट करे, ये कोई रिजल्ट हो सकता है ऑफ अ कैलकुलेशन, या प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले या प्रोग्राम लिखते वक्त प्रोग्रामर ने कुछ डेटा प्रोग्राम के अंदर ही स्टोर किया हुआ है. तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी एरिया एलोकेट करना है जहाँ पर स्टोर होगा. एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन वी tell this variable as a box. It's a box where we will store some data, like date of birth of somebody, like a student's name, so if I'm asking somebody to input for example a login and password, so when that login or password or date of birth or student name, whatever data I'm asking in the program to user to enter, where this will data goes, where this data will go, it will go in RAM actually, in memory actually. So what happens actually, memory has some areas labeled with some hexadecimal addressing, like kind of addressing, F F F F 1 2 3, F F F F 1 2 4,
and so on. Maybe F, 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 I don't know, 999. Misal ke taur par. Now, for programmer to memorize kind of uh, addresses is difficult. So, what is the solution? The solution is to store your data into one of these ways. Because जब मैं कोई data किसी date of birth में store कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि memory में ये कहाँ store है. It's just like your cabinet. So when you put something into your cabinets or drawers, you know that where it is. But at our homes or in schools, in our tables, there are only 1, 2, 3 drawers. So it is not difficult for us to understand. But your memory area is huge and so many similar kind of memory addresses. So it is very difficult for programmer to memorize and keep track of these memory addresses while writing code. Okay, typing mistake भी हो सकती है. So what is the correct way? The correct way is to create some meaningful. मैं जरा screen बड़ी करनी थोड़ी सी. ऐसे बड़ी करना. Okay. So what we have to do as programmers, create some meaningful variables. Meaningful variables. You can think of it as labels. Labels of our drawers. Cabinet के अंदर जो different drawers हैं, उनके labels. So that I could easily create it. So आपने क्या करना है? अपने labels बनाने हैं meaningful. Okay जी. So we have to create meaningful variables, means labels. Now there are some rules that we must follow while creating our variables, labels for the drawers, where we'll have our data. One, these will always start with letters. Always starts with some kind of letter, and can have letters and digits combination of, and it must be meaningful. Why meaningful? Because if they are not meaningful, then what is the purpose of creating labels? Because we already have some meaningful, meaningless addresses. Now, by meaningful, what helps us, it makes the code readable, understandable. कुछ अरसे के बाद हम उस अपने कोड को देखेंगे तो हमें खुद ही समझ आएगा कि हमारा कोड का पर्पस क्या था. तो इसलिए हम मीनिंगफुल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. एंड या बस ठीक है. अल्फाबेट्स आ जाएंगे इसमें, एंड दे विल स्टार्ट विद लेटर्स. अल्फाबेट्स और आप यूज कर सकते हैं लेटर्स, और आप अंडरस्कोर्स भी यूज कर सकते हैं. You can also use underscores for your variable names. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने वेज होते हैं, और वेरिएबल्स कन्वेंशन जरूर फॉलो करना चाहिए. कन्वेंशन मीन्स व्हाट? that if you want to store some, you're asking a user to enter, for example, login name. So जो उसका प्रोग्राम के अंदर देना चाहते हैं, या आप फर्स्ट नेम मांग रहे हैं, तो you create the label like this, either f name, so first letter of a first word and without space. Yeah, there is another rule, no space
between words of variable name. So जैसे ही मैंने f name को ज्वाइन लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे, और you may say f underscore name, you can say first name like this. तो ये इस तरह चलेगा. अच्छा, एक चीज मैं ऊपर ठीक करना चाह रहा हूँ, जरा आप लोग भी उसको करेक्ट कर लें. चलें, नहीं यहाँ पे मैंने नहीं किया, ठीक है ऊपर सारा. So this is what variables are. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अभी तक कोई ऐसी बात तो मैंने नहीं की है जो आपको ना समझ आई हो. आई होप वेरिएबल्स की कुछ आपको समझ आ रही है. वेरिएबल्स क्या हैं? जी ठीक है. अच्छा, वेरिएबल्स जब हम मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ लिखा है, तो वी ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि ये जो हमने लेबल यहाँ बनाया है, इस लेबल का जो डेटा जाएगा, अच्छा वो डेटा यहाँ आएगा फॉर एग्जांपल, तो ये आपस में लिंक हो जाएंगे. लेबल भी मेमोरी में चला जाता है, और ये लेबल किससे लिंक है, यानी कि इसका डेटा कहाँ आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें बताना होता है कि यहाँ पे जो डेटा आएगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी. डेटा टाइप क्या होगी. तो इसको ऐसे समझें, ऑल वेरिएबल्स, ऑल, स्क्रीन पे लिखता हूँ ना, थोड़ा सा पेन मूव कर जाता है. ऑल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या थे मायदा? वेरिएबल्स क्या थे? मायदा है यहाँ पर? मायदा के लिए व्हाट आर वेरिएबल्स? सर, storage area, memory वेरी गुड, which वेरी गुड. where बस you have to store data. बस 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 इतना ही काफी है. स्टोरेज एरिया. एंड ईमान नबी, ये स्टोरेज एरिया क्यों रिक्वायर्ड है? ईमान, ईमान, आर यू देयर? ईमान नवीद Yes, sir. जी, स्टोरेज एरिया क्यों रिक्वायर्ड है? Sir, I missed a little bit. चलो दिया, आप बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा देखा है कि मैं क्या कह रहा था कि क्यों स्टोरेज एरिया चाहिए हमें? यस और नो, जल्दी करो. दिया, दिया, आर यू देयर? Some, चलो कोई कोई और बता दे. खदीजा आप बता दें क्यों चाहिए वेरिएबल्स, स्टोरेज एरिया क्यों चाहिए? sir, to store data which बस can be changed afterwards. बस 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 इतना काफी है. ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें भी चाहिए ही नहीं अभी. हमें आहिस्ते आहिस्ते समझ आ जाएगा. भाई हमने क्या कहा ऊपर? हमने कहा हम अपने ड्रॉज में डेटा रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, फाइल में डेटा होता है, तो हम वेरिएबल्स बना लेते हैं. वेरिएबल्स क्या मतलब? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस हमें याद रखना मुश्किल है. हमारी मैम कितनी होती है, 8 GB, और फिर पता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डेटा रैम में रखे. तो हम पहले से ड्रॉज के लेबल्स बना लेते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं. और उन वेरिएबल्स में फ़ायदा क्या होता है कि हम डेटा रख लेते हैं, तो उस डेटा को जब भी एक्सेस करना होगा तो हम इस बॉक्स को एक्सेस करेंगे. इस बॉक्स को जब हम डेट ऑफ बर्थ करने होंगे, हम इस बॉक्स को एक्सेस करना होगा. लॉगिन डेटा को देखना होगा, हम इसको देखना होगा. कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया प्रोग्राम की वजह से कि एग्जीक्यूशन की वजह से, तो हमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए हैं. तो वेरिएबल्स आर मेमोरी area which we create, यानी कि labels that we create
to store data. Simple. बस these are boxes जिसके अंदर हम प्रोग्राम का डेटा रखेंगे, और वो डेटा कहाँ से आएगा, या कंप्यूटर जनरेटेड होगा, या यूजर ने इनपुट किया होगा, या कोई कांस्टेंट होगा, या कुछ और होगा. कांस्टेंट को अभी मैं थोड़ा सा बाद में और एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ all variables labels also have some kind of, या some kind of लिखता ही नहीं हूँ, तो ये लिख देता हूँ. All variables also have data types, यानी कि जब हम अपनी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें उनकी डेटा टाइप भी बतानी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एक लेबल हमने बनाया फर्स्ट नेम का, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि इसमें जो डेटा आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मैं कह रहा हूँ कि इस मेमोरी एरिया का, लेट्स सपोज का एड्रेस है F1 में हेक्सा एड्रेस, इसका लेबल क्या कह रहा हूँ, इसका लेबल है F नेम. इसमें डेटा क्या आएगा, मैं कहूँगा इसमें टेक्स्ट टाइप का डेटा आएगा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा आएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगा. इस अल्फा न्यूमेरिक को हम एक और यूज करेंगे, वो मैं भी आपको बताता हूँ. VB के अंदर हम कुछ और यूज करेंगे, लेकिन यहाँ सूडो कोड में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, और एक VB की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं. तो फिलहाल आप टेक्स्ट को या अल्फा न्यूमेरिक को जेर में रखें. आपको पता है कि जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, इसलिए उसको टेक्स्ट कहेंगे. And then I ask a user to enter the date of birth. So I have to store it. Let's say in F2 जाके store होना है इसने. So I labeled this box as to. Now what is the data? What should be the data type of this? The data type of this should be date. Sir, integer होगा. नहीं, date data type होगी. So हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हम बताते हैं कि जो भी लेबल्स वेरिएबल्स बना रहे हैं, इन वेरिएबल्स की जो मेमोरिकेशन होंगी, इनके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा. तो ये लेबल्स भी खुद मेमोरी में चले जाते हैं और ये लिंक हो जाते हैं. जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ लिंक करके. तो जब भी मैं अपने इस वेरिएबल को, लेबल को एक्सेस करूँगा, एक्चुअली क्या होगा कि इसका डेटा एक्सेस और मैनिपुलेट होगा. ये बात है. सो हैंडलर्स ऑफ माई, सिंपल हैंडलर्स ऑफ माई बॉक्सेस. सो जो कॉमन डेटा टाइप्स हैं हमारे वेरिएबल्स के लिए, वो कौन कौन सी हैं. ये सूडो कोड डेटा टाइप्स है. मैं आप जहन में रखें कि हम सूडो कोड ही डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे. तो डेटा टाइप्स कौन कौन सी होंगी. डेटा टाइप्स होंगी सबसे पहले टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक, जो भी लिखें, एंड फिर हमारे पास होगी डेट, नंबर, करेक्टर. सिर्फ एक ही करेक्टर हमें चाहिए, जैसे FM, या स्टेटस के लिए एडल्ट का A, किड्स का K, काइंड ऑफ. अगर सिर्फ एक ही करेक्टर का डेटा स्टोर हमें चाहिए तो फिर हम करेक्टर डेटा टाइप लेंगे, जिसे CHAR भी लिख सकते हैं. और देन वी हैव वन नोन एज boolean. It means that the variable is going to store only a value like true or false, only two things. So this is also a very important data type that is required in our programming. So we have text, date, number, character, and boolean. So these are some common pseudocode data types which we need for our programs to be stored. Now, how we will store data? Now the question is how we, or the programmers
store data. सर एक मिनट ऊपर वाला दिखाना प्लीज, वो मैंने नोट नहीं किया, थोड़ा सा रहता था। बस ठीक है. How programmers store जी सर. data in programs. So बच्चा लोग, this is your first programming instruction जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जो भी वेरिएबल आपने बनाया है, जैसे ऊपर हमने एक बॉक्स बनाया था फर्स्ट नेम, तो मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम. So I've given an arrow like this. ये सूडो कोड सिंबल है, and I will give the data over here. I'm putting data as a heading over. ठीक है, ये डेटा आप डिफरेंट तरीकों से आ सकता है यहाँ पर. This is known as assignment symbol. Assignment symbol, and the whole instruction which has the assignment symbol in the between. On the left side we have the variable जिसमें data को store करना चाह रहे हैं. On the right side we will have the data. So this complete statement is known as assignment statement. So this is your first programming language instruction, assignment statement. Now let me write down some assignment statements for you to understand. If I want to assign value as a programmer within the program and to a variable, and you can understand variable means that value will be changing. So for in that case, I'll be doing this. For example, f name डबल कोट्स में. डबल कोट्स क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स आने हैं, टेक्स्ट आने हैं, तो टेक्स्ट हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं. तो लेट मी से आसन. तो जब प्रोग्राम में, ये मेरी पहली असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई, असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई है. जब मैं इस स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम में जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो जो आसिम है इस लेबल के स्टोरेज एरिया में चला जाएगा. और जब भी मैं प्रोग्राम में एफ नेम को हैंडल करूंगा तो एक्चुअली आसिम हैंडल होगा. सो क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेट मी जस्ट क्रिएट दिस फर्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉर यू इन दिस प्रोग्राम. मेरा प्रोग्राम तो पहले इनपुट और आउटपुट का ही था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो we are going to write our program in this area. ये जो मेन आ रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मॉड्यूल के, सॉरी यहाँ पे भी हम ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, इस एरिया में भी हम कुछ ना कुछ लिखेंगे. तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल. अभी मैंने डिक्लेरेशन की बात नहीं की है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें फॉर द फर्स्ट लेसन. सिर्फ आप असाइनमेंट स्टेटमेंट को आपने देखना है. ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन बताऊंगा कि ये डिम क्या, व्हाट डज मीन डिम. सो डिम जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ उसका नाम है एफ नेम, और इसकी डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ आपको. मैंने बताया था टेक्स्ट, वीबी में इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. सो फॉर द टाइमिंग जस्ट स्किप दिस थिंग. हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है एफ नेम, और इसको मैं असाइनमेंट सिंबल वीबी में इक्वल्स टू साइन है, हमारे वहाँ पे सूडो कोड में एरो साइन है. बीच में मैं डबल कोट्स के लिख दूंगा आसम. ठीक है. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ कि वाकई ये आसिम कहाँ चला गया. लेट मी जस्ट टेस्ट दिस प्रोग्राम बाय प्रेसिंग स्टेप इनटू. तो मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ. मैंने F11 प्रेस किया है, और ओ सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने स्क्रीन आपसे पूरी शेयर नहीं की हुई है. ओह माय गॉड, वेरी सैड. आप में से कोई मुझे बता भी नहीं रहा कि सर let me share my full screen.
ओके ना, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अब स्क्रीन नजर आ रही है वीबी की, विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। हाँ, मैंने सिंगल स्क्रीन शेयर की थी पहले। देखिए, मैं अब वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम वर्ड डेम यूज करते हैं। अब हो रहा है तो साथ देख ही ले। और मेरे वेरिएबल का नाम है एफ नेम एज स्ट्रिंग। तो मैंने उसकी डेटा टाइप भी बता दी है वेरिएबल की, और वेरिएबल क्रिएट हो गया। और अब इस एफ नेम को मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ आसिम टेक्स्ट। ये मैंने साइन कर दिया। Now I'm running this and I'm going into debug। ये ऊपर debug आ रहा है और मैं यहाँ से F11 करूँगा। F11 क्या होगा, मेरा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ से F11 दोबारा मैं कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ F11। तो वेरिएबल क्रिएट ऑलरेडी हो गया, और अब F11 प्रेस करूँगा तो ये असाइनमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। और अब देखिए एफ नेम के अब में वो क्या दिखा रहा है, एफ नेम में आसिम दिखा रहा है। आपको मैं एफ नेम कहीं और जाके दिखाता हूँ, विंडोज और यहाँ से वेरिएबल वॉच और वॉच वन में। तो ये नीचे एक टेबल आ रहा है जहाँ पे मैं एफ नेम लिख रहा हूँ। ये जगह है जहाँ पे हम चेक अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे वेरिएबल्स के अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए वो बता रहा है कि एफ नेम जो वेरिएबल लेबल है, इसके मेमोरी एरिया में क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है। इसके मेमोरी एरिया में आसिम स्टोर हुआ है। ये मैं इसे लेबल कर रहा हूँ, ये देखिए। So what I have just discussed today is how we can create labels and why we need to create variables and how we need to assign a value to it. So क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था, यानी कि टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था, और इस टेक्स्ट वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद उसको मैंने एक असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की, जिससे मैंने क्या किया कि इस लेबल, इस वेरिएबल, इस बॉक्स जो आप फिलहाल नाम देना चाहें दे लें, एक और नाम भी दे सकते हैं, आइडेंटिफायर। नॉर्मली ये यूज होता है वर्ड और वेरिएबल्स का वर्ड। सो फॉर in this identifier f name, what I have done, I have stored Asim's name. So here you can see in the variable watch window कि f नेम के अंदर हमें नजर आ रहा है आसिम स्टोर हो गया। कब हुआ, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो हम आप चाहें तो जिस तरह से मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया, अब मैं इस प्रोग्राम को डीबग में जाकर तो स्टॉप करता हूँ। ये वाला बटन है स्टॉप का, मैं इस स्टॉप डीबगिंग को प्रेस किया तो ये प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो गया। इसी तरह से आप भी प्रोग्राम सिंपली इतना कर सकते हैं जितना मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम दिया, और फिर डीबगिंग में जाके F11 से मैंने एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखा कि हमारा एफ नाम क्या होता है। तो हमने कोड लिखा थोड़ा सा, हमने डीबग में जाके F11 करके सारा कोड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था, ये इस जगह को आप क्लिक करेंगे, जो ये 8 के राइट साइड पे ग्रे एरिया, यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, आपका प्रोग्राम यहाँ के स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा, वेरिएबल वॉच विंडो पे आप नहीं जा सकेंगे। तो वेरिएबल वॉच विंडो में जाके मैंने एफ नेम टाइप किया था, वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू पे मुझे सामने नजर आने लग पड़ी थी। तो फॉर टुडे इट इज एनफ। रीड